ہمارا 80% بجٹ جو ہے نا وہ فورسز کو جا رہا ہے، اس طرح کی چیزوں کو جا رہا ہے. آئی ٹی سے بھی آلموسٹ اپ ہے. تو ہمارا کوئی 4% 5% بجٹ جو ہے نا ہیلتھ کو ہے، 5% ایجوکیشن کو ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے. وہاں پہ جو ون پارٹی والا رول ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو تھوڑا بہت فاشسٹ اسٹیٹ بھی کہتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی اکانومی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ لانگ ٹرم سولوشن کی طرف جاتے ہیں، وہ ایجوکیشن میں ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، آئی ٹی میں ہیں. سب سے بڑی اگر جن ممالک نے ترقی کی ہے ان کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے، اس لیے وہ لوگوں نے آگے ترقی کی ہے. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے، کبھی فوج آ گئی ہے اور کبھی سیاسی گورنمنٹ آ گئی ہے. انڈیا تو ہمیشہ جو ہے نا ہم نیچے ہی دیکھتے ہیں، انڈیا کو ہم اپنے اوپر نہیں دیکھتے ہیں. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی میزبان نرگس صدیقی. ویورز، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک پازیٹیو چیزیں لے کر آئیں انڈیا پاکستان کے حوالے سے. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان ایک ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے. آج ہم بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ پاکستان اب بھی انڈیا سے پیچھے ہے اور انڈیا جو ہے وہ کافی ترقی کر چکا ہے. ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے تو اس کی ٹیکنالوجی بھی پاکستان سے کافی بہتر ہے، اور وہاں کی فلم انڈسٹری کی بات کی جائے تو وہ بھی پاکستان سے کافی آگے ہے. اور اس کے علاوہ باقی بھی بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو پاکستان سے بہتر کام کر رہے ہیں. اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے پیچھے ہے. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ فرحان. فرحان، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں CSS کی تیاری کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. فرحان، انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا اور اب دیکھا جائے تو انڈیا ہم سے کافی آگے جا چکا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہاں یس، ایسے ہی ہے. آلموسٹ کافی ساری چیزوں میں انڈیا آگے ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن، فرسٹ آف آل ایجوکیشن پہ ان کا زیادہ فوکس ہے. آپ دیکھیں نا، انڈیا کا لٹریسی ریٹ 74 ہے اور پاکستان کا 58 ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات، سب سے زیادہ یونیورسٹیز انڈیا میں ہیں اس وقت اوور آل ورلڈ میں. ہاں آلموسٹ آئی تھنک سو. تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کا سب سے زیادہ فوکس ایجوکیشن پہ ہے. اور اس کے علاوہ ان کی فلم انڈسٹری دیکھ لیں، اس پہ وہ فوکس کرتے ہیں، اس پہ وہ توجہ دیتے ہیں. ان کا بجٹ ہوتا ہے ہر چیز میں. ان کا ہیلتھ کا بجٹ ہے، ان کا ایجوکیشن کا بجٹ ہے، ان کا فلم انڈسٹری کا بجٹ ہے. ان کا سب چیزوں کا بجٹ جو ہے نا اسپیسیفائز ہے. تو ہمارا ایشوز یہ ہیں کہ ہمارا ان چیزوں کو بجٹ بہت زیادہ کم دیا جاتا ہے. بے شک آپ جو ہے نا اس کو چلائیں، ہمارا 80% بجٹ جو ہے نا وہ فورسز کو جا رہا ہے، اس طرح کی چیزوں کو جا رہا ہے. آئی ٹی سے بھی آلموسٹ اپ ہے. تو ہمارا کوئی 4% 5% بجٹ جو ہے نا ہیلتھ کو ہے، 5% ایجوکیشن کو ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے. وہاں پہ فورسز کی جو جگہ ہے انہوں نے وہی دی ہوئی ہے. ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک بجٹ طے ہے کہ ان کو پتہ ہے، مطلب پاکستان آزاد ہونے کے بعد کی یہ صورتحال چل رہی ہے. انہوں نے تب سے ہی ان چیزوں کو، وہ آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹ میں ہم سے آگے ہیں، وہ مطلب مینوفیکچرنگ میں ہم سے آگے ہیں. اب دیکھیں سب سے زیادہ آن لائن ورک جو ہے نا انڈیا سے ہو رہا ہے. اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، مطلب وہ ارننگ کر رہے ہیں آج کل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ صفی اللہ. صفی اللہ، کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں پڑھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے صفی اللہ، انڈیا جو ہے ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، ہمارے ساتھ ہی ان کی دونوں ملک آزاد ہوئے. تو اب انڈیا ہے کافی ترقی کر چکا ہے، انڈیا ہم سے آگے ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے پیچھے ہے؟ دیکھیں اس کا تھوڑا کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے. جیسے پاکستان جو ہے وہ جب آزاد ہوا تھا تو کانسٹیٹیوشنل بلڈنگ میں ہی تقریباً 9 سال لگ گئے تھے. تو 56 میں ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن آیا تھا. اور انڈیا میں مطلب وہ جیسے ہی وہ ملک آزاد ہوا تو اس میں 1935 والا جو کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا، انڈین گورنمنٹ ایکٹ تھا، وہی انہوں نے مطلب امپلیمنٹ کیا. اور ان کی کانسٹیٹیوشنل بلڈنگ بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جو سول ملٹری ریلیشن تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. ہمارے پاس تھوڑا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں نا، خاص کر کے جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے جوڈیشری ہو گیا اور ایگزیکیوٹیو ہو گیا، یہ دونوں انسٹیٹیوشن ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب افیکٹو ہیں. ہمارے پاس اتنے وہ افیکٹو نہیں ہیں. سمجھتے کہ ان کی یونٹی جو ہے، ہماری یونٹی نہیں ہے. ہماری جو پولیٹکس ہیں، پولیٹیشینز ہیں، وہ ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں. انہوں نے ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں سوچا. جو ہے ان کے آپس میں ذاتی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی. اور انڈیا میں دیکھا جائے تو وہ اس سے ان معاملات کو پیچھے رکھتے ہیں جو ذاتی ہوتی ہیں، اور وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں. یہ وجہ نہیں سمجھتے آپ؟ دیکھیں وہ پولرائز پولیٹکس جو ہے وہ ہر مطلب ملک میں ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تھوڑی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس ملٹی پارٹی سسٹم ہے. پاکستان میں بہت زیادہ پارٹیز ہیں. اگر انڈیا کو دیکھیں گے تو وہاں پہ جو BJP کرنٹ پارٹی ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، اور جو کانگریس والی پارٹی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. تو وہاں پہ جو ون پارٹی والا رول ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو تھوڑا بہت فاشسٹ اسٹیٹ بھی کہتے ہیں.
ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही है, हमारे पास पोलराइज पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे आरएसएस जो आइडियोलॉजी है वो बहुत उनकी स्ट्रांग है, मजबूत है। मतलब हर एक बंदा जो है वो आजकल यही चाहता है कि इंडिया जो है वो सेक्युलरिटी से निकले और कम्प्लीटली एक जो है वो हिंदू नेशन, मतलब हिंदू कंट्री और बन जाए, जिसमें मतलब इंडियंस का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर इंडिया इसी तरह तरक्की करता रहा तो क्या पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं चला जाएगा? जबकि देखा जाए तो चाइना भी हमसे काफ़ी बाद में आज़ाद हुआ था और उनका बाद में मुल्क बना था, और चाइना अब जो है वो सुपर पावर में आता है। तो पाकिस्तान इस तरह रहा तो काफ़ी पीछे नहीं रह जाएगा? देखें, इंडिया की तरक्की से पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंटली तरक्की कर सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा रीजनल प्लेयर है, आजकल इमर्जिंग प्लेयर है और शायद सुपर पावर आगे चल के बन भी जाए जैसे यूएसए। तो पाकिस्तान जो है वो अपने खास करके सिक्योरिटी वाले मसले से हट के अगर वो अपने इकोनॉमी वाले मसलों पे ज़्यादा फोकस करेगा, जैसे इंडिया ने फोकस किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से इंडिया की तरक्की पाकिस्तान के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली प्रमोट कर सकता है अपने इकोनॉमी को, और उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास टूरिज़म वाला एक बहुत बड़ा सही नमूने, मतलब सही तरीके से ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही किसी भी चीज़ की, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन से स्ट्रांग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बांग्लादेश की बात की जाए वो तो काफ़ी बाद में हमसे जाके आज़ाद हुआ और अब जो है वो कहा जा रहा है कि ये एशिया का सुपर पावर बनने जा रहा है। तो अब बाकी मुल्क जो हैं हमसे तरक्की करते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, बांग्लादेश इज़ नॉट अ सिक्योरिटी स्टेट, पाकिस्तान इज़ अ सिक्योरिटी स्टेट। पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो बजट है वो इस चीज़ में खर्च करता है कि हमारे पास सिक्योरिटी का मसला है, अफ़गानिस्तान का अलग मसला है, इंडिया का, मतलब टू फ्रंट्स है, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान जो है वो इसी वजह से एक स्ट्रेटजिक कंट्री है जिसको थ्रेट्स होते ही होते हैं। जब बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश एक प्योर इकोनॉमी बेस्ड जो है ना वो कंट्री है। उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल किया, जैसे उन्होंने कॉटन और जूट को सही इस्तेमाल किया। आज वो गारमेंट्स की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए हैं। उसके अलावा टूरिज़म उनके पास बहुत अच्छा है और उनके इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, डेमोक्रेसी उनके पास सही प्रिवेल करती है। उनके पास जो एजुकेशन का लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो मतलब कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना तरक्की नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात ये कि उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, वो एजुकेशन में हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, आईटी में है, वहाँ पे सेकुलर वो है सारा, और बीजेपी जो है तो वो तो आपको पता है आके सारा कुछ क्या करिए, किस तरह से करिए, सेकुलरिज्म बराए नाम करके तो वो अपने कंट्री को सबसे हम लोग कह सकते हैं कि वो डिक्टेरियन या डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। अब देखा जाए इन चाइना की बात की जाए तो वो चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ था, मुल्क बना था। अब चाइना जो है वो सुपर पावर की तरफ जा रहा है। तो इन पाकिस्तान नहीं, आप समझती कि पाकिस्तान इसी तरह रहा तो जो बहुत पीछे ममालिक हैं उनकी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा? नहीं, अगर पाकिस्तान को सबसे पहले तो जो हमारी आपको पता है हुकूमत आई है, कभी वो टग ऑफ वार जो हमारे इंस्टीट्यूट के दरमियान हुकूमत के दौरान ये सब कुछ चलता रहता है। बजाय हमारे जो पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएं, लेकिन अभी जो है टाइम ऐसा है कि लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है बिल्कुल डाउन हो रही है। वो अभी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएँ वक्ती तौर पर, और उसके बाद देखें जो हमारे जो 75 ईयर हो गए पाकिस्तान के उसी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो करेंगे तो शायद। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अपनी तरक्की के लिए? पाकिस्तान को सबसे पहले ये तो एजुकेशन में पॉवर्टी को ख़त्म करनी चाहिए, एजुकेशन की तरफ बच्चों का रुझान करना चाहिए, सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आना चाहिए, और ये कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। और अब यूथ के लिए ऐसे प्रोग्राम वो करें, लॉन्च करें कि जिसमें यूथ को मौका मिले और वो अपनी मतलब अपने आप को मनवा सकें, एक प्लेटफॉर्म उनको मिलना चाहिए। आपका नाम? उस्मान। उस्मान, क्या करते हैं आप? बाय प्रोफेशन वर्किंग जर्नलिस्ट, आई डू वर्क फॉर जियो टीवी। माशाल्लाह, हमारी फील्ड से आप। आज का हमारा टॉपिक है जैसे इंडिया पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए थे। अब देखा जाए तो इंडिया काफ़ी आगे जा चुका है, पाकिस्तान कुछ चीज़ों में पीछे है। क्या वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा? देखें जी, दुनिया जिन ममालिक ने तरक्की की है उनका एक ही असूल है, एजुकेशन। बदकिस्मती से हमारा एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड नहीं हो सका। हर हुक्मरान ने दावा किया कि हम एजुकेशन सिस्टम को एक जैसा बनाएंगे, मगर आप देखें यहाँ गरीब के लिए तालीम अलहदा है, मिडिल तबके क्लास के लिए तालीम अलहदा, अमीर क्लास के लिए तालीम अलहदा, और एक उससे भी एलीट क्लास है जिनके लिए तालीम टोटली अलग है। तो जब एजुकेशन का सिस्टम एक नहीं होगा तो जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे, गरीब बंदे को कोई जॉब नहीं मिलेगी। जो अच्छी फैमिली से है, कहते हैं ना जिधे कारदाने तो कमले भी सियाने। तो जब बच्चे अच्छी स्कूलिंग होगी, अच्छी एजुकेशन होगी तो वो अच्छी जगहों पे जॉब करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। एजुकेशन सिस्टम को एक होना चाहिए ताकि अगर गरीब का बच्चा भी है, अमीर का बच्चा भी है, वो एक स्कूल में पढ़ें ताकि वो मुल्क के लिए कुछ रोल प्ले कर सकें। आप देखें कि पूरी दुनिया में
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तालीम का सिस्टम मुफ्त है, जो वहाँ के सिटीज़न्स हैं वो वहाँ पर अपने बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाते हैं। इवन कि यहाँ के जो पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में अगर सेटल्ड हैं तो वो भी अपने बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाते हैं। वो क्यों वापस नहीं आते? उनको पता है यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है ठीक, एजुकेशन सिस्टम के अलावा यहाँ पर खुराक ठीक नहीं है, खाने की शय ठीक नहीं है। जब आपको फूड ठीक नहीं मिलेगा, एजुकेशन ठीक नहीं मिलेगी तो क्या बंदा डिलीवर करेगा? आप देखें ना, पेट खाली हो और दिमाग में जहालत हो तो क्या बंदे ने डिलीवर करना है? सबसे बड़ी अगर जिन ममालिक ने तरक्की की है उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, इसलिए वो लोगों ने आगे तरक्की की है। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है, कभी फ़ौज आ गई है और कभी सियासी गवर्नमेंट आ गई है और इसी कशमकश में बस अवाम जो है वो परेशान है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, आया कि फ़ौज बेहतर है या सियासतदान बेहतर है। मगर उन ममालिक ने तरक्की की है जिन मुल्कों में जमहूरियत है। आप बड़े बड़े ममालिक का नाम लें जिनमें देखें इस वक्त अमेरिका है, ब्रिटिश जो जिसको दुनिया में जमहूरी का अलम बरदार कहा जाता है। इन ममालिक से हमें अपने आप को सीखना चाहिए ताकि हम मुल्क को आगे लेके चल सकें। अगर सिस्टम तालीम बेहतर होगी तो हमारा मुल्क भी आगे जाएगा, मगर आप ये देखें कि हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। आज की महंगाई, लोगों की सैलरीज वही हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत परेशान हैं। हर मुल्क में हुक्मरान आके दावा करता है भाई मैं मुल्क में गुर्बत ख़त्म करूँगा, मैं IMF से कर्ज़ा नहीं लूँगा, मैं वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा नहीं लूँगा। और भाई आपने लेना नहीं लेना, मगर आवाम का तो देखो, आवाम तो बुरे हाल है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर काम करना चाहिए अपनी तरक्की के लिए? देखें, सबसे पहले जो तरक्की हमारा, आप कोई ऐसा सेक्टर बताएं जो बेहतर है। कोई सेक्टर बेहतर नहीं है, वो तालीम हो, वो सेहत हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो लॉ एंड ऑर्डर हो, कोई सिस्टम चीज़ें बेहतर नहीं है। ये सिस्टम चीज़ें बेहतर होती हैं वक्त के साथ, जब आप हुकूमतों को टाइम देते हैं। आप देखें कि डिफरेंट किस्म का कानून है। आप किसी भी कंटोनमेंट एरिया में चले जाएं, वहाँ पे चीज़ें आपको बड़ी डिसिप्लिन नज़र आएंगी, वहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नज़र आएगी। मगर आप कंटोनमेंट से निकलते हैं, आपको वैसे बुरे हाल, गंदगी सड़कों पे नज़र आ रही है। क्या वजह है कि सिस्टम बने हुए हैं, उन सिस्टम को एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा। जब सिस्टम को एक्सरसाइज किया जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है, हमारी फ़ौज बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में और बहुत से ज़्यादा वजूहात हैं जो इंडिया हमारे से आगे नहीं है बल्कि पीछे ही है। तो क्या पैगाम देंगे आप इंडिया को? इंडिया को यही पैगाम देंगे कि एक तो वो अपनी जो है वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको संभाल के रखे। हमारी फ़ौज जो है वो इंडिया से बहुत अच्छी है, बल्कि इंडिया से क्या पूरे वर्ल्ड में हमारी फ़ौज को माना जाता है। और इंडिया को हमेशा जो है ना हम नीचे ही देखते हैं, इंडिया को हम अपने ऊपर नहीं देखते हैं।